नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के प्रशासन अकादमी में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का गुरुवार को पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना की मौजूदगी में समापन हुआ। इस मौके पर डीजीपी ने बढ़ते साइबर क्राइम पर चिंता जताई, तो वहीं दूसरी ओर जिला साइबर क्राइम को और मजबूत किए जाने पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में देशभर के लगभग 7,000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राजधानी में वार्षिक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट का गुरुवार को डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में समापन हुआ। 10 दिनों तक चली इस समिट में देश भर के 7,000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने शिरकत की और साइबर क्राइम की लगाम लगाने के लिए विचार विमर्श किया। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने साइबर क्राइम पर चिंता जाहिर करते हुए ट्रेंड स्टाफ और अन्य पहलुओं पर अपनी राय रखी। एडीजी साइबर क्राइम योगेश देशमुख ने कहा कि क्राइम में दक्षता लाने के लिए जिन पुलिसकर्मियों की इसमें रुचि है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के जरिए इंटर स्टेट विवेचना के दौरान होने वाली परेशानी व मुद्दों पर चर्चा हुई। इस समिट के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी की धाराओं में दक्ष होने के लिए टिप्स भी दिए गए। इसके साथ ही साइबर स्पेस में आने वाले सभी अपराधों पर भी इस समिट में चर्चा की गई। इसके अलावा देश और देश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। I'm very happy to note that CIS is growing and will be acknowledged by all. Most of the law enforcement agencies and central agencies and other organizations joined it. I'm told this year 6,819 participants came from this summit. Over 44 hours of learning were obtained in 10 days. And total of 57 speakers, including 4 international speakers, shared their insights with the world of cyber crime. Over the last 4 years, and particularly in the last 10 days, the summit has enlightened our forces about numerous technological possibilities, including but not limited to digital forensics, laws related to cyber crimes, cryptocurrency, data privacy, cyberbullying, and a host of such topics. The international speakers gave us insight into possibilities at the global level and global cooperation. We discussed cases where international collaboration has helped solve cases, and there are cases where the possibility of success appeared absolutely nil in the beginning. And the level of participation itself is a testimony to the growing stature of CIS. Looking at the diligence and industry in the execution and planning, I am sure that the CIS will be taken to the next level. I would suggest that apart from this annual event, you can also think of having periodical themes in between the year for relevant topics, so that the momentum keeps on building up. And also will help us in updating our knowledge and it. So our never say die attitude helps us to step our game. But we need to build capacities, we need to acquire tools, and we need to forge partnerships to deal with them. The other day I talked about the way forward. There are some more steps which can take. First of all, we have to reinforce our cybercrime police stations and district cyber cells. We have to add tech-savvy police personnel to these cyber cells. We can carry out a kind of talent hunt, and then we can identify the good constables, head constables, which we can attach to the cyber cells of the districts.
But then we'll have to train them on the job. Cyber headquarters have already conducted several offline and online courses for them. We can spot them, we can refresh their knowledge about the cyber crime domain, and say about a week's training, we can induct them into cyber crime cell of the district police. We also need to take the cyber crime complaints more seriously as a separate genre at the police station level. And we all know that, like in an accident case, there is a concept of golden hour concept. Because if you work in golden hour, you can save many lives. So what would you speak and convince them? So I am at a forum like this where we got even 2 minutes. And my only point to convince the state is that over these last 4 years, they've moved on. As far as UNICEF is concerned, we're particularly concerned about safety and protection of children, women, and that too who are the most vulnerable, most marginalized. And from the previous years to this year, we moved our pitch from cyber safety, online protection, to what is called digital empowerment. And if you heard our session on 15th Thursday, that was our strong pitch saying that children, young people, women, particularly those in difficult circumstances, marginalized groups who are in rural areas, urban pockets, need to have good access to internet so that they are able to capitalize resources, economic empowerment, livelihood, education, entertainment through internet. My suggestion, recommendation to this forum, which is led by the DGP. The biggest takeaway to me in person, apart from whatever knowledge I could gain in this 10 days, is the interstate coordination part. Ultimately, any of our IOs or senior officers who are looking after the victims, as we all know, this being a national, international types of crimes, most of our offences, the victims could be of one state, the victims largely belongs to the other states. SMA, how do we have more coordination among states? We had a panel discussion, it was a very fruitful panel discussion. We had states representatives from Rajasthan, Jharkhand, Bihar, West Bengal. Our biggest takeaway that day was, how do we help our IOs who come to the state, to your state? How do we help them in nabbing the criminals and making their life easy? क्योंकि जनरल फीलिंग ये होती है जब हमारे आईओएस केस के लिए जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस स्टेट्स में नहीं मिल पाता। That is not always the case. There have been many states जहाँ पे बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। We have now decided we'll have a WhatsApp group of senior officers, at least 2 officers from all states, who will be coordinating with regard to investigations of crime. Investigations of crime, mostly logistics. इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि साइबर क्राइम को रोकथाम कर सके सर, इसको लेकर भी तो जैसे भारतीय दंड संहिता है, पिछले 150 साल से इस पे लोगों की दक्षता बढ़ गई है, प्रैक्टिस बढ़ गया है, ज्ञान बढ़ गया है। अब बड़े आसानी से लोगों को फील्ड में इसके इन्वेस्टिगेशन में आसानी जाती है। लेकिन साइबर क्राइम से संबंधित ये नई दुनिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, बट टेक्निकल चीज़ है। तो इसमें दक्षता लाने के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जिनका टैलेंट है उनको सर्च करके बाकी लोगों को इसमें ट्रेन करना पड़ेगा। हमारा ये लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में जितने आसानी से भारतीय दंड संहिता की धाराओं की विवेचना हो पाती है, उतनी ही आसानी से हमारे राज्य के हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम से संबंधित अपराधों की भी विवेचना हो पाए। क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, इसमें समय लगेगा, लेकिन जैसा डी साहब ने कहा, इसका टैलेंट हट करके और लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करके रेगुलर ट्रेनिंग करवाते हुए, और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे परफॉर्मिंग संस्थाएं हैं और ये जो हमारा समिट है, इसके माध्यम से लोगों को ट्रेन करने का उद्देश्य। ठीक सर, थैंक यू सर। इनकी सर क्या परिणाम आज निकल के आया सर? देखिए, ये जितने तेज़ी से साइबर क्राइम की वृद्धि हो रही है पूरी दुनिया में, भारत में ऐसा ये महसूस किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो धाराएं हैं जो साइबर क्राइम को देखती हैं,
उनके ऊपर ज्ञान और अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी टेक्निकल होते हैं तो अपना खुद का अपग्रेडेशन, स्किल का अपग्रेडेशन, चाहे वो पुलिस की एजेंसीज हो, प्रोसिक्यूशन की हो या जुडिशरी हो, हम सबका सक्षम होना और दक्ष होना बहुत आवश्यक है, जनता को राहत मिल सके। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ कि हम सभी का नॉलेज अपग्रेड हो, उनके स्किल्स अपग्रेड हो और समस्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए जो तीनों विंग हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, जुडिशरी हो, प्रोसिक्यूशन हो, उनके लिए एक ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस समिट इसको कहा गया और पूरे देश के करीब 7,000 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए। हर एक राज्य से पार्टिसिपेशन आया है, हर एक यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेशन आया है एक्सेप्ट वन। और इसका मैंने जैसे मूलतः कहा, हम जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, प्रोसिक्यूशन का, जुडिशरी का जब दक्षता बढ़ेगी विवेचना के संबंध में और अन्य साइबर क्राइम के संबंध में, तो जनता को राहत मिल पाएगी और साइबर क्राइम की जो बढ़ती हुई तेजी रफ्तार, उसमें हम थोड़ा बहुत रोक लगा पाएंगे। सर, जैसे साइबर क्राइम होता है अन्य राज्यों में होता है, मध्य प्रदेश में जो साइबर क्राइम होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ जाती है सर, कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी जो रहती है, हमेशा कुछ सहयोग नहीं मिल पाता है जाँच में, उसको लेकर भी सर देखिए, इस समिट में हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया। साइबर स्पेस में होने वाले समस्त अपराधों को, चाहे वो सोशल मीडिया से संबंधित अपराध हों, महिला बच्चों से संबंधित अपराध हों या क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हों, लेकिन ये जितने भी अपराध हैं ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। कैसे? जैसे विक्टिम हो सकता है कि यहाँ का हो लेकिन अपराधी किसी अन्य राज्य में बैठा हो या अन्य देश में बैठा हो, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा पहलू रहता है। तो हमने एक पैनल डिस्कशन रखा जिसमें हमने जो हमारे से संबंधित, मध्य प्रदेश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट राज्य थे वो सभी राज्य के अधिकारी पैनल डिस्कशन में आए, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम सब ने पैनल डिस्कशन किया। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारी टीम जब आपके राज्यों में आती है तो उसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको कैसे दूर किया जाए और कोऑर्डिनेशन बेटर किया जाए, इसके संबंध में चर्चाएं हुई। इसी के साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, पूरे भारत के समस्त राज्यों के सीनियर अधिकारियों का एक कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के संबंध में चर्चा हुई और इस पर अमलीजामा पहनाया जाएगा। सर, टैलेंट हेड की बात अभी डीजीपी साहब ने कही है, जिला स्तर पे जो जिला साइबर क्राइम है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।